masterpieces. They will take you on a mesmerizing journey that will captivate your senses and ignite your imagination. But it's not just about what happens on stage. It's about the connections we make, the friendships we forge, and the memories we create. So I request you all to embrace this event with an open heart and engage with the performer and artist and savor the cultural journey of Manzar. Now, it gives me immense pleasure to hand over the stage to the charismatic and talented host for this event. They will be our guide through this wonderful journey of culture and artistry. Please give a warm round of applause to Sri Vipul Goyal and Ms. Neha Saini as they take the stage and lead us through this enchanting evening. Over to you. Thank you, Ayush. Good evening, respected DG sir, respected dignitaries for today's event, staff of Dr. NCR HRD IT, our fellow officers, and all the participants of various courses gracing us with their presence. I am Vipul Goyal. I am Neha Saini. And we will together sail you through the various manzar of dance, drama, comedy, and poetry in this colorful showcase of talents by the 5th MES FC batch. आँखों के सामने से जो कुछ भी गुजरता है वही मंजर में तब्दील हो जाता है। कुछ मंजर को हम भूल जाते हैं और कुछ मंजर यादों में तब्दील हो जाते हैं। आज हम इन्हीं मंजरों को यादों में तब्दील करते हैं और इस रंगीन शाम की शुरुआत करते हैं। मंजर विच मीन्स सीन in English, Drishya in Hindi, and Drishyam in Telugu. In line with our ancient tradition, we will start this event by lighting of the lamp to dispel the darkness. पर विपुल, हम दीप ही क्यों जलाते हैं डार्कनेस को दूर करने के लिए? हम बल्ब या ट्यूबलाइट भी तो जला सकते हैं। Neha, that too would remove darkness, but the traditional significance of lighting a lamp is having a spiritual significance as well. The ghee or the oil which is there in the lamp, it symbolizes our vasanas or negative tendencies, and the wick, our ego. So as we light the lamp, by our spiritual knowledge, the vasanas get slowly exhausted and the ego also perishes. And hence, there is a significance of lighting a lamp before every auspicious event. Thank you, Vipul, for enlightening us. अब मैं स्टेज पर हमारे मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। I request respected DG sir, Chief Consultant Training, CD ma'am, ACD ma'am, DG's nominee for Film and Fine Arts Society, and our special invitee for today, Shri Raj Shekhar Karra sir from MES, to please grace the stage and light the lamp.
थैंक यू सर। हम आदरणीय तिथियों से निवेदन करते हैं कि वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और हमें कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति दें। अरे विपुल, तुम मोबाइल में इतना खोए हुए हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ आ गए हो। अरे सॉरी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं स्टेज पे कब आ गया मोबाइल यूज करते करते। हाँ, लेकिन तुम कोई अपवाद नहीं हो। आजकल हर कोई मोबाइल के जाल में फंसा हुआ है। और इसी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर माइम प्रस्तुत करने आ रहे हैं हार्दिक, पार्वती, लक्ष्मी, वीरेंद्र, हिमानिल, नरपत, पवन एंड भूपेंद्र। Let's welcome the first performers of Manzar tonight with a very big round of applause.
वाओ वाओ, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। आई थिंक दिस परफॉर्मेंस वॉज इम्पेकेबल, completely entertaining, and I think everyone was completely captivated with this performance. And everyone is smiling. So I think I will work on my mobile addiction from now on, and please give them again a big round of applause for spreading this wonderful message. Thank you. हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें लगता है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, हम सब लोग धर्म संकट में फंसे रहते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के धर्म संकट को हमारे सामने कलाकार संदीप प्रजापति अपनी कविता से प्रस्तुत करने आ रहे हैं। एक बार संदीप प्रजापति के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सम्मुख अपने बंधु बांधवों, गुरु और पितामह को देखकर दुखी हो जाता है और युद्ध से विमुख हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शित करते हुए गीता का ज्ञान दिया। गीता के कुछ उन्हीं अंशों को मैंने अपनी कविता के रूप में ढालने की कोशिश की है। उम्मीद है आप मुझे आशीर्वाद देंगे। मेरी कविता का शीर्षक है धर्म संकट पार्थ का। कहा पार्थ ने माधव से, कहा पार्थ ने माधव से, किस किस का मैं संधान करूं। कहा पार्थ ने माधव से, किस किस का मैं संधान करूं। सम्मुख मेरे सब अपने हैं, सम्मुख मेरे सब अपने हैं, मैं क्यों ऐसा ये पाप करूं। शिथिल अंग हो हाथों से, शिथिल अंग हो हाथों से, गांडीव गिरा ही जाता है। भ्रमित मति मेरी होने से, भ्रमित मति मेरी होने से, काया कंपित हो जाती है, काया कंपित हो जाती है। गुरु वो जिसने ज्ञान दिया, गुरु वो जिसने ज्ञान दिया, क्या उसका रक्त बहाऊंगा। निज बंधु पितामह को हतकर पापी स्वार्थी कहलाऊंगा। निज बंधु पितामह को हतकर पापी स्वार्थी कहलाऊंगा। राज्य भोग सुख किस निमित्त, राज्य भोग सुख किस निमित्त, स्वजन ही जब साथ नहीं। राज्य भोग सुख किस निमित्त, स्वजन ही जब साथ नहीं। कर रक्त पात धर पाया जो, ऐसा राज्य स्वीकार्य नहीं, ऐसा राज्य स्वीकार्य नहीं। अहो हरि, अहो हरि मति भ्रष्ट हुई, कैसी ये कामनाएं हैं। अहो हरि मति भ्रष्ट हुई, कैसी ये कामनाएं हैं। स्वजन हंत को उद्यत हो, सुख राज्य भोगने आए हैं। स्वजन हंत को उद्यत हो, सुख राज्य भोगने आए हैं। देख पार्थ की करुण दशा, देख पार्थ की करुण दशा, मधुसूदन ने मुस्कान भरी। देख पार्थ की करुण दशा, मधुसूदन ने मुस्कान भरी। असमय अज्ञान हुआ कैसे, कायरता की जो बात कही। खड़े जो सम्मुख तेरे हैं, खड़े जो सम्मुख तेरे हैं, वो पाप के सब सहभागी है। क्यों शोक करे उनकी खातिर जो नश्वर तन के त्यागी हैं। क्यों शोक करे उनकी खातिर जो नश्वर तन के त्यागी हैं। ज्यों परिवर्त तू वस्त्र करे, ज्यों परिवर्त तू वस्त्र करे, त्यों आत्मा तन परिवर्त करे। जना जो मृत्यु निश्चित उसकी, जना जो मृत्यु निश्चित उसकी, फिर किसका तू शोक करे, फिर किसका तू शोक करे। सत्य सनातन आत्मा यह अमर अजन्मा होती है। सत्य सनातन आत्मा यह अमर अजन्मा होती है। अदाह्य अकाट्य अशोष्य यही आर्द्र कभी ना होती है, आर्द्र कभी ना होती है। कर प्रणिपात पार्थ सारथी को अर्जुन ने उद्बोध किया। कर प्रणिपात पार्थ सारथी को अर्जुन ने उद्बोध किया। क्षमा करो गोविंद मुझे जो छत्र धर्म से विमुख हुआ। क्षमा करो गोविंद मुझे जो छत्र धर्म से विमुख हुआ। बंध मोह पास में केशव जो, बंध मोह पास में केशव जो, कायरता के ये भाव कहे। बंध मोह पास में केशव जो, कायरता के ये भाव कहे। निज शिष्य मान मुझ अज्ञानी को दिव्य ज्ञान प्रदान करें। निज शिष्य मान मुझ अज्ञानी को दिव्य ज्ञान प्रदान करें। कर चक्षु दिव्य प्रदान पार्थ को, कर चक्षु दिव्य प्रदान पार्थ को, प्रभु ने रूप विस्तार किया। अनंत ब्रह्मांड समाहित जिसमें कोटि सूर्य सम ओज हुआ, कोटि सूर्य सम ओज हुआ। अनादि हूँ मैं, अनंत हूँ मैं, सब विभक्त इसी में होते हैं। सब जन्म मुझी से लेते हैं और विलीन मुझी में होते हैं। सुन कौनते, सुन कौनते यह सांख्य योग, सुन कौनते यह सांख्य योग। ज्ञानी जन जिस पर चलते हैं, रख सुख दुख में समरूप भाव नियत धर्म अपनाते हैं।
नियत धर्म अपनाते हैं। काम क्रोध भय राग द्वेष तज, कर्म का तू अधिकारी हो, व्यर्थ उद्विग्न न हो फल हेतु, कर्म योग आचारी हो, कर्म योग आचारी हो। विषयों का चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से आसक्त मनुज हो जाता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्त मनुज हो जाता है। आसक्ति से जनते क्रोध मोह, स्मृति भ्रमित वह पाता है, स्मृति भ्रमित वह पाता है। भ्रमित मति के होने से, भ्रमित मति के होने से बुद्धि विनाश हो जाता है। नाश बुद्धि जो होती है, नर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, नर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सुनकर ज्ञान कृष्ण श्री मुख से, सुनकर ज्ञान कृष्ण श्री मुख से अर्जुन फिर आश्वस्त हुआ, अर्जुन फिर आश्वस्त हुआ। ले गांडीव निज हाथों में, करने युद्ध उत्तिष्ठ हुआ, करने युद्ध उत्तिष्ठ हुआ। धन्यवाद। थैंक यू संदीप। कुछ चंद पलों में आपने पूरे श्रीमद् भगवद गीता का सारांश हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। इस कविता में जो कवि के भाव और जो शब्दों का चयन था, इससे मैं पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो चुका हूँ। I think he has completely enlivened the stage, and let's hear it once again for Sandeep Prajapati. Thank you. So Neha, which is the next performance? Wait. Don't step over the clock, Vipul. Let's come to the theatre of life. We now present Nukkad Natak, which means street play to sensitize our social issues. I welcome Vaishnav, Abhinav, Ayush, Sonu, Pankaj, Ravi, Narpat, Vikas and Nikunj. Please give them a warm welcome. बड़े दिनों के बाद आज एक बढ़िया फिल्म देखने को मिली है। पर पापा ये आंटी की चुन्नी उड़ी तो वो माँ कैसे बनी? जरा दोबारा मत पूछना। बड़े समय के बाद आई वीडियो, इसमें आना कहानी, बेचारे ये उत्सुक तो है, फिर भी देखो तो चुप है। शर्मिंदा होना मंजूर, लेकिन सच को रखो दूर। पर्दे पड़े रहेंगे हर पर, मन को ये समझा दो तुम है पर्दा करने को, इसको बंद करो ये झुंझुना। दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। पापा ये बच्चे कैसे होते हैं? अच्छा कच्चे तो लक्ष्य के भी अच्छे और कच्चे तो रूपा के भी अच्छे। बेटा तुम्हें कौन से चाहिए? पापा बच्चे। अच्छा लच्छे के पराठे तो इतने जबरदस्त होते हैं, तो तूने ही तो 5-5 खाए थे। पापा बच्चे। अच्छा जच्चे, हाय रिश्ते नच्चे तब तू बड़ी चच्चे। पापा बच्चे। अब कैसे समझाऊं मैं इसको वो वाली बात? क्या थे वो दिन और क्या थी वो रात। पर भगवान ये कैसा बच्चा दे दिया तूने? अच्छा भगवान, अरे बेटा बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। भगवान? पापा क्या मैं भगवान की देन हूँ? ऑफ कोर्स। पापा क्या आप भी भगवान की देन हो? अरे बेटा हम सब भगवान की देन है। इसका मतलब हम सब का पापा एक है। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देख लिया। क्या देख लिया? मैंने देखा एक लड़का है, एक लड़की है और दोनों में प्यार हो रहा है। भैया पापा ने कह रहे थे कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। भगवान कुछ नहीं होता, जो होता है सब जाने वाली में होता है। इसका मतलब भगवान को कोई याद नहीं है। अरे होता है ना, भगवान
इंसान का दिया हुआ सब कुछ होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, और दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत, कंसेंसुअल सेक्स होना चाहिए। कंट्रोल दैट कंट्रोल। पापा सही से बताते हैं, कोई नहीं बताता कि बच्चे कैसे होते हैं। लगता है अब खुद ही पता करना पड़ेगा। भारत में आज भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्स की जानकारी टीवी से 15%, मैगजीन से 17% और दोस्तों से 60% और फैमिली से 8%। इसका मतलब बच्चों को सेक्स की जानकारी अनरिलायबल सोर्सेज से ही मिलती है। भारत में आज भी 80% मर्द और 85% महिलाओं को सेफ सेक्स और फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं है। भारत में आज भी सेक्स की सही जानकारी ना होने के कारण न जाने कितने कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का शिकार होते हैं। पर अंकल, हमारे घर वाले हमें कुछ बताते क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पर अपने ताला रखो क्योंकि हिंदुस्तान है। तो बड़े और बच्चों को देने पे हम ये सूचना मत पूजा। लाइट कैमरा एक्शन। बंद करो या ढिंचा और बंद करो या कटर को। हमने सारा इज्जत से चले और सेक्स की बात करे तो। Hey dude, what's your problem, man? After all, I am a free Indian. तेरे जैसे इंडियनों को जोर नहीं और तेरे जैसों को तो मैं खड़ा नजर दूंगा। एक बात और सुन ले, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, नीचे। चलो भाइयों, काट ऐसा सिस्टम। अरे क्या करे, अगर इंडिया में ऐसी वैसी बात करेगा तो पीटना तो बनता है ना। और आप ही बताओ भाई साहब, हमारे जैसे सभ्य समाज में सेक्स जैसी चीजों की जगह होनी चाहिए क्या? नहीं भाई साहब, हमारे समाज में तो दंगे और मारपीट की जगह होनी चाहिए। ज्यादा नेता ना रहे, तेरा भी सिस्टम उखाड़ दूंगा। अरे एक बात और सुन ले, जब विदेशी ताकतों ने हमारे देश पे बुरी नजर डाली है, तब हमारे जैसे देशभक्तों ने उनके सिस्टम उखाड़ दिए हैं। वाह भाई साहब, आपकी बात सुन के तो लगता है आपने हमारी सभ्यता, संस्कृति और सिस्टम में पीएचडी कर रखी है। फिर तो आपने इस बात पे गौर किया ही होगा कि अप्सराओं और कामदेव के देश में सेक्स हमारे समाज का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। और भाई साहब, खजुराहो की पुरानी इमारतों को भी तो मंदिर इसीलिए कहते हैं ताकि भविष्य में सेक्स की विविधता बनी रहे। और हमारी संस्कृति तो हमेशा यही रही है कि हम सेक्स जैसे मुद्दों पे खुल के बात कर सके, लेकिन कुछ भद्र अंग्रेज जनों ने इसे अभद्र करार देकर हमें हमारी संस्कृति से भटकाने की कोशिश की है, और आप भी वही कर रहे हैं भाई साहब। पर भाई साहब, ऐसी बातें चार दीवारी के भीतर हो, इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, बरखुरदार बुराई है। अब आप जरा इन दोनों को ही देख लीजिए। बादल बाबुलाइजा होशियार मोहम्मद टिकू पधार रहे हैं। आज की सभा की शुरुआत हमें जोर से करना चाहेंगे। इशार इशार इशार। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, झमझम झमझम झमझम। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, झमाझम झमाझम झमाझम। पास गए तो भीगे। महाराज, आपको भीगने भिगाने की पड़ी है। आपकी सल्तनत में जाके देखिए, सूखा पड़ा है, सूखा। चिल्लाए फौरन तानसेन को पेश किया जाए, हो जाए कुछ राग मेघ मल्हार। महाराज, तानसेन तो वहाँ किसी के साथ प्रेम राग गा रहा है, प्रेम राग। तो इसमें क्या गलत बात है? हम भी तो मोहतरमा के साथ नैन लड़ा रहे हैं। और वो महाराज, आप जानना नहीं चाहेंगे, चलिए आपका फेवरेट शो आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे नहीं, हम जानना चाहेंगे कौन है वो हसीना, हमारे रत्न का दिल है जिसने छीना।
महाराज तानसेन तो निकला बड़ा नमूना, उसे भाई कटरीना ना करीना, उसका दिल तो किसी मर्द ने छीना। जियो 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 जियो। हमारी सल्तनत में ऐसे खुले विचारों के लोग रह रहे हैं और ये नमूना उन्हें नमूना कह रहा है। सेनापति 500 कोड़े लगवाए जाए। लेकिन महाराज दो मर्दों के बीच सेक्स? अच्छी छी 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 500 कोड़े लगवाए जाए। अरे सेक्स कोई जिस्मानी रिश्ता थोड़ी है, ये तो दो दिलों का मेल है रे। महाराज रिप्रोडक्शन 150 करोड़ की आबादी वाले देश में इसको रिप्रोडक्शन की पड़ी है। पर महाराज ये अननेचुरल है। कुछ नेचुरल अननेचुरल नहीं होता है, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो मैं सिर्फ ऐसा उखाड़ता हूँ। फिर तो महाराज आपकी सल्तनत से धारा 377 हटा दी जाए। हटाई नहीं अभी तक, फौरन हटा दो। और हम तानसेन की महबूब से रूबरू होना चाहेंगे। महाराज आप रूबरू ना हो तो ही बेहतर होगा। जिले और महाराज तानसेन की महबूबा तो आपका बेटा सलीम है। जिले इन दोनों नौकरानों को हमारे सामने पेश किया जाए। तानसेन और शहजादा सलीम दोनों नामर्द नामुराद फौरन हाजिर हो। तुम्हें क्या पसंद है सलीम में? लब पूछा तो सलीम में। मुझे क्या करते गए? हमने तुम्हें अपनी महफिल में शामिल करवाया, तुम ये सब में चाय बेचा करते थे, हमने तुम्हें दूध की फैक्ट्री लगा के दी। मैंने आपका नमक खाया है महाराज। बेटा खाएगा। महाराज हम तो प्यार करने वालों के बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। पर महाराज थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे कि ऐसे रिश्तों में कोई बुराई नहीं है। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। देखिए ऐसे रिश्ते आवाम में रहे तो अच्छा है, घर की चार दीवारी में ऐसे रिश्ते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सेनापति चुनवा दो इन दोनों को। और आज जल्दी जल्दी आपके सामने गाना दीवार को चुनवाना। गाना इरशाद इरशाद। अरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, नारी को नारी ही पूछे नर को नर ही भाएगा। नर को नर ही भाएगा। बच्चों के ये प्रश्न अनोखे मिल ना पाए सूचना, शर्म इन्हीं से पूछे दोबारा मत पूछना। भारत में आज भी 24 लाख से ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत विश्व में एड्स के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। मगर भाई साहब आजकल ये एड्स के बारे में तो सबको सब कुछ पता है, और इस भारत देश में एड्स के सिवा भी और भी जानलेवा बीमारियां मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस एड्स के वायरस से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, और गोनोरिया और साइफिलिस जैसी बीमारियों के बारे में आप जानते क्या हैं? अब आप बच्चों को कुछ बताएंगे नहीं तो आपको तो यही लगेगा कि यह उनके खेलने कूदने की उम्र है। अभिज्ञान के इस मार्ग पर एक भूख सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है। संपूर्ण से यदि हो गया मृदु ज्ञान का फिर अर्थ क्या, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सादगी सब बोल दो। घर में यही माहौल हो, सुन भी सको समझा सको, शिक्षा है जीवन की एक, देने में कोई शर्माए ना, देने में कोई शर्माए ना। अभी तूने पलटकर मुझसे दोबारा ना पूछा जाओ, भारत का सुखद स्वप्न ही सूली पर चढ़ जाएगा, सूली पर चढ़ जाएगा।
We have been informed that such a bold topic was performed on this stage for the very first time in the history of NCR HRD. So I would request them to please give them a special applause. Such a high power and entertaining performance it was. It's the best way to perform to spread awareness on social issues. Thank you, Abhinav and team. To welcome our next performer, I would like to recite a few lines. Your verses breathe life, each line a work of art. In your deep meaning poems, you touch the very heart. With every stroke of pen, you share a poet's part. So let your verses flow as we gather round your flame. In your words, we'll find solace, inspiration and acclaim. Welcome, poet of depth, to this gathering of insight. Please join your hands together for Himanshu Srivastava. एक प्रबल भावना हमें हमारे जीवन के किसी न किसी क्षण में जरूर महसूस होती है और ये भावना है अलगाव की भावना। और इसी अलगाव की भावना के संबंध में मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि तुम कभी मेरे पास न थी, तुम कभी मेरे पास न थी, खास होकर भी खास न थी, दूरी का था घाव गहरा, घाव की भी त्रास न थी, दुख नहीं था। तुम कभी मेरे पास न थी, खास होकर भी खास न थी, दूरी का था घाव गहरा, घाव की भी त्रास न थी, और वक्त भी तुम थी, क्षण भी तुम थी, अर्जुन भी तुम थी, कर्ण भी तुम थी, सुकू भी तुम थी, रण भी तुम थी, मेरे जीवन का अद्भुत प्रण भी तुम थी। वक्त भी तुम थी, क्षण भी तुम थी, अर्जुन भी तुम थी, कर्ण भी तुम थी, सुकू भी तुम थी, रण भी तुम थी, मेरे जीवन का अद्भुत प्रण भी तुम थी, और कासा भी तुम थी, काठी भी तुम थी, माथे पर सजी माटी भी तुम थी। तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, सच है मेरा जीवन। तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, सच है मेरा जीवन, लेकिन सच नहीं है। अरे किससे जीती हो तुम तो खुद से हो हारी। जाने के बाद किससे जीती हो तुम तो खुद से हो हारी। आज कह देता हूँ दिल की बात सारी, दिल की बात सुनिएगा। तुम नील नहीं हो, तुम नभ नहीं हो, तुम कल नहीं थी, तुम अब नहीं हो, तुम रचना उसकी स्वयं प्रणव नहीं हो, स्वयं भगवान नहीं हो। तुम नील नहीं हो, तुम नभ नहीं हो, तुम कल नहीं थी, तुम अब नहीं हो, तुम रचना उसकी स्वयं प्रणव नहीं हो। असीम हो तुम अनल्प हो, लेकिन सब नहीं हो। असीम हो तुम अनल्प हो, लेकिन सब नहीं हो। कुछ वक्त हो तुम पूरा काल नहीं हो, प्यार हो तुम प्यार का जाल नहीं हो। कुछ वक्त हो तुम पूरा काल नहीं हो, प्यार हो तुम प्यार का जाल नहीं हो। तुम हर्ष नहीं हो, तुम उल्लास नहीं हो, एक बादल हो तुम पूरा आकाश नहीं हो। प्रिय हो प्रीतम हो तुम कामनी रमणी हो तुम। प्रिय हो प्रीतम हो तुम, कामनी रमणी हो तुम। इन बातों की मेरे हृदय में अब औकात नहीं है। कोई पूछे मुझसे कौन हो तुम, कोई पूछे मुझसे कौन हो तुम, प्रशंसा करूं तुम्हारी, अब ऐसे मेरे हालात नहीं है। प्रशंसा करूं तुम्हारी, अब ऐसे मेरे हालात नहीं है। निर्मल हो तुम, हाँ ये सच है। निर्मल हो तुम, हाँ ये सच है, लेकिन इसमें सच जैसी कोई बात नहीं है। अरे हजारों हैं तुम जैसी इस दुनिया में, लेकिन ये दिल है मेरा, कोई खैरात नहीं है। और इसी भावना के साथ मैं एक आपके सामने परिदृश्य रखना चाहूँगा कि दो व्यक्ति हैं जो कभी अलग हो चुके हैं। अब उनमें से जो पुरुष है वो बहुत समय बाद स्त्री से मिलने जा रहा है। स्त्री तो रुष्ट है, नाराज़ है, वो अनेकों हज़ारों बातें उससे कह रही है उल्टी सीधी। तो जो उसको जो फील हो रहा है, जो उसको महसूस हो रहा है, उस भाव का वर्णन मैं अपनी अगली कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूँगा। मेरी अगली कविता का शीर्षक है छुरी, ठीक स्त्री की बोली की तरह छुरी। कुछ तो उसने कहा ही था, हृदय उसका खरा ही था, लाल रंग नहीं बहा शरीर से, मुख से कृपाण चला ही था। कुछ तो उसने कहा ही था, हृदय उसका खरा ही था, लाल रंग नहीं बहा शरीर से, मुख से कृपाण चला ही था। भेद गया था हृदय को मेरे, एहसास क्या ये नया ही था, छोड़कर जिस पल गया था मैं, घाव क्या वो भरा ही था। सुना रही थी बातें मुझको, नमक मुख पर धरा ही था, आंखें मेरी सूखी थी परंतु समुद्र अंदर भरा ही था।
सुना रही थी बातें मुझको, नमक मुख पर धरा ही था। आंखें मेरी सूखी थी परंतु समुद्र अंदर भरा ही था। बातें तो मैं भी कह देता कुछ, लेकिन शांत रहना भला ही था। कहीं दुख ना पहुँचे बातों से मेरी, क्या प्यार मेरा मरा नहीं था। कहीं दुख ना पहुँचे बातों से मेरी, क्या प्यार मेरा मरा नहीं था। टाल रहा था वक्त कुछ पल, लेकिन शंख अभी बजा नहीं था। चुप्पी में आवाज़ थी मेरी, क्या आँखों से उसने पढ़ा नहीं था। चुप्पी में आवाज़ थी मेरी, क्या आंखों से उसने पढ़ा नहीं था। ये रूप भी देख लिया था उसका, उसे छोड़ के जाना भला ही था। किस अपराध का दोषी ठहराती मुझको, एक चाक पर रिश्ता चला नहीं था। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये रूप भी देख लिया था उसका, उसे छोड़ के जाना भला ही था। किस अपराध का दोषी ठहराती मुझको, एक चाक पर रिश्ता चला नहीं था। तुम अपने अंदर भी तो देखो, यूं हर वाण मुझ पर ना फेंको। मैं तो चाह रहा था भला तुम्हारा, आखिर में शेष रह गया एक किनारा। तुम भी समझो हालात को मेरे, क्षमा करो अपराध को मेरे। और मत बढ़ाओ त्रास को मेरे, बस परछाई ही है पास में मेरे। और मत बढ़ाओ त्रास को मेरे, बस परछाई ही है पास में मेरे। मत मुड़ के देखो उन राहों को, और मत खुरेदो अपने घावों को। अश्क झलके आँखों से मेरे, बोलकर ये सब मैं चला ही था। समा गई थी बातें उसकी, घाव आज भी हरा ही था। कुछ तो उसने कहा ही था, हृदय उसका भरा ही था। और मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा 4 लाइनों के साथ। एक शेर है कि उससे जो बात कहनी थी, उससे जो बात कहनी थी, मैं वही बात कहकर आया हूँ। उससे जो बात कहनी थी, मैं वही बात कहकर आया हूँ। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ। अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था जिसे कुछ घाव भरने के लिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था जिसे कुछ घाव भरने के लिए। मैं उससे एक नई चोट ले आया हूँ। मैं उससे एक नई चोट ले आया हूँ। अब मेरा कहीं रहने का जी करे भी तो कैसे करे। मैं कुछ दिन उसके मकाम में रह आया हूँ। जिन्हें पता था मेरे हर ज़ख्म के बारे में, जिन्हें पता था मेरे हर ज़ख्म के बारे में, मैं उन्हीं हाथों में नमक दे आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है हिमानिल, तुमने तो इस महफिल में 4 चांद लगा दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिमानिल के लिए। कार्यक्रम के इसी दौर को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए, जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार, और हमारे ओटीज़ भी है जिसके लिए तैयार। अब हमारे बीच डांस परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं संदीप, हार्दिक, विकास, वीरेंद्र, वैष्णव, आकाश और गौतम। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
I think my breath just went away. It was such a breathtaking performance. I was thoroughly entertained, and I think the audience is enjoying a lot. Right. So, to continue this charade of so many nice performances, I would like to invite upon the next dance performance. So, ladies and gentlemen, let's give a thunderous round of applause to welcome the sensational dance team of Ayush, Sudhir, and Pankaj to come and enlighten the stage. Thank you.
कैसा था? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, ऑडियंस से पूछते हैं। चलो, कैसा लगा परफॉर्मेंस? यहाँ तक हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। I would like to add one more thing. So we saw Sudhir, and all my fellow officers can relate. He has been taking dancing lessons from past 6 months, and this is the first time that any one of us has seen him dancing. So I think he deserves a special clap from all of us.